बच्चों, क्लास 12 इंग्लिश कोर की एक कहानी मैं इंग्लिश में फिर हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा। साथ ही उस स्टोरी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताऊँगा और अंत में उस स्टोरी से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा। कहानी का नाम है द लास्ट लेसन और राइटर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। चिल्ड्रेन, आई एम Sudhir Kumar Sen. I would explain the story of class 12, the last lesson. I would explain the story both in Hindi and English. Apart from that, I would dictate multiple choice questions and subjective questions with answers. Let us see what the story is. The name of the story is The Last Lesson. The author's name is Alphonse Daudet. The background of the story is the Franco-Prussian War. It was fought from 1870 to 1871 between Germany and France. During those days, it was named Prussia. Prussia consisted of three countries that are now named Germany, Poland, and a part of Austria. A fierce fight was fought between Prussia and France. The war continued for 2 years and France was defeated. A truce was held between the two countries. France was a loser. It had to leave two districts, Alsace and Lorraine, that were handed over to Prussia. The war ended. A student who was not attentive to his studies was French. Please pay attention to the terms. French, F-R-A-N-Z, was a student. Their language is French, F-R-E-N-C-H, means the language of France. French was given a chapter to memorize. It was named participle by his teacher M. Hamel. He had been teaching in that school situated in the district of Alsace for the last 40 years. The student French did not know even the first letter of participle. So he started for school very late. If he stayed at home, he would be beaten by his parents, and if he came to school, he would be beaten by the teacher M. Hamel. So he decided to set out for school late and would enter the class after a while when the teacher would go out. He saw a large crowd near the bulletin board. You must have heard the word bulletin. Bulletin means a newspaper or journal. He could not understand why there was a large crowd near the bulletin board. He went to the school. Outside the boundary, he found
a change. What the change was? Usually, the students learned their lessons, repeated their lessons loudly. Such a noise was not heard by him that day. Some students would pull and push the drawer of their desk, but such sounds were not heard by French. He went near the door. He wanted to enter the class so that the teacher would not be able to find him, but it did not happen. As he went near the class, the teacher looked at him and said that he was going to start the class without his presence. But that day he found another change inside the classroom. There were many benches in the classroom and most of them remained unoccupied. But that day the village elders were sitting on the back benches that were generally vacant. The elders, the village elders who once had been the students of the same teacher M. Hamel, were reading the primers. The teacher had no ruler under his arms. He was very unhappy. He did not scold French and asked him to have his seat. He was asked to come closer and explain what a participle was, but he could not answer. M. Hamel said that it was not his fault. All of the guardians and teachers were responsible for that. He himself said that he was responsible because even during the class he told some of the students to water the plants planted by him in the garden. The teachers did not care for their mother tongue. He explained that an order had come from Berlin. It was their last lesson in French. The next day, a new teacher would come from Prussia to teach only German. The order that had come from Berlin made the teachers M. Hamel, the village elders, and even French emotional. Just then he heard the cooing of the pigeon on the roof. He asked himself a question. Would the Prussians ask the peasants to coo in their language? He became so much emotional. That day, the teacher explained everything in such a lucid way that French could understand everything. The teacher wanted to explain everything that he knew. The teacher said that their mother tongue, French, was the most logical and the clearest language of the world. He requested the elders to protect their language and not to forget it, not to ignore it, because their language was the key to their freedom. Just then he heard the Prussian soldiers drilling. He looked outside the window and became emotional. His throat became choked. He could not pronounce even a word. He took a piece of chalk and wrote with big letters on the blackboard, Vive la France. That means their country, France, may survive forever.
With these words, he ended his class and made a signal to the students to go away. He declared that it was his last lesson. With these words, I explained everything. I come to an end to my speech. बच्चों, इस कहानी का नाम है द लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। इस कहानी की पृष्ठभूमि है फ्रैंको प्रशियन वार, यानी फ्रांस के साथ प्रशिया का जो युद्ध हुआ था, ये इस कहानी की पृष्ठभूमि है। ये युद्ध हुआ था 1870 से 1871। 2 वर्षों तक चले इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी और एक समझौता हुआ था। इस समझौता के अनुसार फ्रांस को अपने 2 जिले अल्सक और लॉरेन प्रशिया को देना पड़ा था। आज के ज़माने में आप एटलस में मैप में देखेंगे प्रशिया नाम का कोई देश नहीं है। उस समय 1870 ईस्वी के आसपास प्रशिया देश था, जिसकी राजधानी थी बर्लिन। और प्रशिया का विखंडन हो गया है और ये आज 3 भागों में विभाजित हो गया है। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक हिस्सा, ये तीनों देश मिलकर के प्रशिया था। 2 वर्षों तक चले इस युद्ध में फ्रांस को 2 जिला दे देना पड़ा। उसमें से एक जिला अल्सक में एक विद्यालय की कहानी है। उस विद्यालय में एक शिक्षक हैं एम हामेल, जो 40 वर्षों से एक ही विद्यालय में पढ़ाते आ रहे हैं। वे बड़े ही शिष्टाचार मानने वाले शिक्षक थे। एक हाथ में हमेशा एक पुस्तक और दूसरे हाथ में हमेशा एक रूलर रहा करता था और बच्चों के लिए वे बड़े डर के कारण थे। एक दिन शिक्षक एम हमेल ने बच्चों को व्याकरण का एक चैप्टर पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया था। उनका एक स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है जो इस कहानी का नैरेटर भी है। इस कहानी के लेखक तो अल्फोंस डॉडेट हैं, लेकिन इस कहानी के नैरेटर यानी व्याख्याता फ्रेंच है। इस पर ध्यान देंगे। फ्रांस देश से संबंधित कहानी है। वहाँ की भाषा का नाम है फ्रेंच, FRENCH, और जो पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थी है उसका नाम है फ्रेंच, FRANZ। फ्रेंच को पार्टिसिपल का एक लेटर LETTER यानी वर्ण अक्षर नहीं आता था। उस दिन वो सोचा देर से घर से निकलेंगे, क्योंकि घर में रहने से माता पिता की पिटाई मिलेगी और स्कूल जाने से शिक्षक से मार खाना पड़ेगा। इसलिए वो सोचा देर से घर से निकलेंगे और शिक्षक का पीरियड समाप्त हो जाने के बाद क्लास में जाएंगे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो घर से निकला। रास्ते में एक व्यक्ति फिर भी बोले, बहुत टाइम मिलेगा, देर से आज नहीं जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी ही भीड़ है। बुलेटिन आप समझते होंगे, BULLETIN, जिसे आज के ज़माने में हम न्यूज़पेपर कहते हैं या जर्नल कहते हैं। न्यूज़पेपर समझेंगे। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ है, उसे समझ में नहीं आया। वो आगे बढ़ा। विद्यालय कैंपस के बाहर उसने उस दिन एक परिवर्तन देखा। रोज क्लास शुरू होने के समय बच्चों से बहुत आवाज़ होती थी। कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई लर्न करता था, कोई ड्रॉअर खींचता था या लगाता था, बंद करता था, आवाज़ होती थी। आज आवाज़ नहीं हुई। वो आहिस्ता से क्लास के सामने गया, सोचा
शिक्षक दूसरी तरफ ध्यान दिए हुए हैं, उस समय हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन शिक्षक की नज़र पड़ ही गई। आज उनके हाथ में स्टिक भी नहीं है और एक किताब भी नहीं है, और वे नॉर्मल ड्रेस में हैं, जैसा कि संडे हॉलीडे प्राइज डे को पहनते थे। स्कूल यूनिफॉर्म में टीचर नहीं थे। कक्षा बहुत बड़ा था, अधिकांश बेंच खाली रहती थी, लेकिन आज उन्होंने देखा सारे बेंच भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गांव के बुजुर्ग लोग, विलेज एल्डर्स, जो आज से 38 साल पहले भी पढ़े होंगे और इसी टीचर के तो विद्यार्थी हैं, वे लोग आज फेयरवेल करने के लिए, विदाई करने के लिए वे आए हुए हैं। क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं है। शिक्षक ने आज डांटा नहीं। आज वे भावुक होकर विद्यार्थी को बोले, जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। जैसे ही बैठा तो शिक्षक बोले, आज तुम्हारे बगैर ही मैं पढ़ाई करने जा रहा था। अच्छा, ठीक हुआ। पार्टिसिपल की पढ़ाई मैंने तुम्हें बताया था, लर्न करके सुनाने के लिए आओ। फ्रेंच आया, लेकिन एक शब्द भी बोल नहीं पाया। शिक्षक उसे डांटे नहीं, बैठने के लिए बोले। कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, अभिभावक और हम शिक्षक। अभिभावक अपनी ही मातृभाषा की अवहेलना करते हैं। वे नहीं समझते हैं कि मातृभाषा देश की आज़ादी की कुंजी है। कुंजी समझते होंगे, चाबी, KEY। और हमने कहाँ अवहेलना किया? हम एक गार्डन लगाए हुए हैं, गार्डन में पौधों की सिंचाई के लिए कभी कभी बच्चों को भेज देते हैं। ये हमसे गलती हुई है। लेकिन उन्होंने तुरंत अभिभावकों से अनुरोध किया कि आप अपनी भाषा की रक्षा कीजिए। हमारी जो भाषा है फ्रेंच, ये दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा तार्किक, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट, इन दोनों टर्म्स का, शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। और शिक्षक ने कहा कि बर्लिन से, प्रशिया की राजधानी थी उस समय बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी है, एक आदेश आया है, आज हम आखिरी बार पढ़ा रहे हैं, कल आपको पढ़ाने के लिए प्रशिया से एक नए शिक्षक आएंगे। आज आप लोग अपनी मातृभाषा, मदर टंग फ्रेंच में लास्ट बार पढ़ रहे हैं। ये उन्होंने इस तरह से दुख भरे शब्दों के साथ प्रयोग किया इन शब्दों को कि शिक्षक के साथ साथ जितने विद्यार्थी थे, विलेज एल्डर्स थे, सभी भावुक हो गए। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि आप इस भाषा को रक्षा कीजिए। आज गांव के बूढ़े बूढ़े लोग, विलेज एल्डर्स, प्राइमर यानी कि ABCD किताब वे लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। उन्होंने ठीक तभी सुना, प्रशियन सोल्जर, प्रशिया के सैनिक ड्रिल करते हुए सड़क से गुजर रहे थे। ये आवाज़ सुनकर वे कुछ नहीं बोल पाए, खामोश रह गए। आज उनके मन में इच्छा है कि जितना कुछ जानते हैं सब कुछ बच्चों को बता दें। अब तक फ्रेंच एक शब्द भी नहीं समझ पाता था व्याकरण के बारे में, लेकिन आज उनको लगा कि शिक्षक के पढ़ाने की जो कला है बहुत अच्छी है। पूरी बात उसको समझ में आ गई। ठीक तभी छत पर कुछ कबूतर कूइंग, COO, कबूतर की आवाज़ कर रहे थे। ये सुनकर वो भावुक होकर कहता है, क्या दुश्मन कबूतरों को भी बोलेंगे कि हमें अपनी आवाज़, हमें मेरी भाषा में आवाज़ करना होगा, कबूतरों को भी अपनी भाषा नहीं, यानी कि दुश्मनों की भाषा में आवाज़ करना होगा। इस तरह से फ्रेंच ने मन ही मन बोलना शुरू किया। शिक्षक M. हामेल के गले में जैसे सांस रुक जा रही है,
वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। एक टुकड़ा चौक लिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, भाइव VIVE ला LA फ्रांस FRANC, भाइव ला फ्रांस। ये फ्रेंच भाषा में है, अंग्रेजी में अगर बोलेंगे, फ्रांस कंट्री सर्वाइव फॉरएवर, फ्रांस देश अमर रहे। इन शब्दों के साथ उन्होंने बच्चों को पढ़ाना आज समाप्त किया और गले से आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने हाथ से इशारा किया, टुडे द क्लासेस ऑफ हार यू मे गो, यानी आज की पढ़ाई बच्चों समाप्त कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। इस तरह से इस कहानी से शिक्षक ने बच्चों को एक संदेश देना चाहा है कि अपना देश सबसे प्यारा होता है और मातृभाषा से प्यारी भाषा कुछ नहीं है। ये शिक्षा देते हुए शिक्षक ने पढ़ाई समाप्त की।